जगह नहीं है। Am I audible to you guys? Yes, sir. Okay. So let me quickly share the syllabus first of all. So in the last class, we were talking about the meaning of production and the factors of production. And today we would be studying about law of variable proportions. All right. Let me quickly share the screen with you. So today we would be studying about law of variable proportion. So before we proceed, I hope you guys have understood the production and production factors, the four factors that we have studied in the last class. All right. So production function basically is like when we include the four factors of production, we process it and we get goods out of it. So we can say this is the input that we have gave, and ये एक तरह से यहाँ पे इन लोगों ने फैक्ट्री बना रखी है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम चल रहा है, फिर उससे हमारा एक आउटपुट निकल रहा है, कार, हाउस, फूड, whatsoever are the goods. All right. Hold on for a second, please. There are some people who are joining. So I was talking about production function. So basically, it is the process, you can say, that how these production factors are utilized to finish the final goods. All right. So if I talk about this law of variable proportion, let's quickly jump into that. So this is all about, if I say about these inputs,
they are something which is fixed in nature, we suppose, right? But यहाँ पे हम एक तरह से दो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, दो रिसोर्सेज इस तरह से, आपको ये चीज बताता हूँ, हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन में, कि हमारे ना जब भी हम कोई एक तरह से प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे हमारे दो इनपुट्स होते हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बेसिकली जो हमें चीज समझनी है यहाँ पे, लेट मी क्विकली जंप इनटू दैट शॉर्ट टर्म, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज। Yep. So basically we have first one is a fixed input। फिक्स्ड इनपुट में हमारे जितने भी एक तरह से हमारे प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, जो फिक्स्ड है एक तरह से फिक्स्ड एसेट यू कैन से, राइट, दैट कम्स इनटू दिस थिंग। एंड वेरिएबल इनपुट्स वो होते हैं जो हमारे एक तरह से रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, लेबर। लेबर हमने यहाँ पे डाला है, यू कैन सी, क्योंकि लेबर हम एक तरह से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। So why I'm saying this, when we would be studying this law of variable proportion, so it shows a relationship between that how the fixed input has a जो इसका proportion होता है fixed input और variable inputs का, वो ये कहता है कि जो भी हम एक तरह से फंक्शन करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट इज द प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस फैक्ट्री में सामान हो रहा है, तो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन इवन से। तो जो भी हम प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं, इसका एक रिलेशनशिप होता है। टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी द थ्री concepts। Three concepts are total product, the second one is average product, and the other one is marginal product। So total product में basically हम वो चीज देखते हैं कि total जो हमारा output होता है out of the inputs that we are giving, this is the total input। हमने resources लगाए, उसके हमारे पास 50 हमने कपड़ों की फैक्ट्री लगाई, इसमें हमारा 500 हमारा आउटपुट आ रहा है, 500 कपड़े बन रहे हैं। So this is the total product that we are getting, right? And if I say about this average product, it is the average जैसे कि आप जानते ही हैं, total product divided by the total input, एक तरह से हम लेते हैं इसमें। You would be able to understand by this graph when I would be explaining this thing। So and the other one is marginal is basically means जो भी हम एक एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको 500 का एग्जांपल दिया, 500 में अगर हम एक 501 करेंगे, तो उसमें कितने हमारा जो एक प्रोडक्ट है उसको इनपुट डालने के लिए हमारा कितने हमारे एक तरह से रिसोर्सेज लग रहे हैं, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब जो एक हमारा एक इंडिविजुअल यूनिट इंक्रीज हो रहा है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। सो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं फिक्स्ड, और मैंने आपको एक फिक्स बताया, एक दूसरा बताया मैंने आपको वेरिएबल इनपुट, है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। हम जब शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन में हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, बट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल हमारे एक तरह से वो होते हैं फैक्टर्स, वो फिक्स नहीं होते हैं, दे कैन फ्लक्चुएट। जो हमारे इनपुट्स होते हैं, दूसरे जो इनपुट्स होते हैं वेरिएबल इनपुट्स, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिक्स वाले चेंज नहीं हो सकते, वो कांस्टेंट रहते हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। We will see that how this law shows different values if I talk about total output, total product you can say, then average product and marginal product। इस पे हम एक तरह से एक रिलेशनशिप देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। एंड इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग रन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इसका आगे स्केल वाला पढ़ेंगे।
So let's focus on this short run as of now. All right. So let me quickly jump into the assumptions first of all before we proceed. Assumptions पे पढ़ना ज्यादा जरूरी है पहले. इसमें assumptions हम ये लेते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल जितने होते हैं उसमें बस वन फैक्टर ऐसा होता है जो कांस्टेंट है. एक मिनट. ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल. ठीक है, जैसा कि हमारा होता ही है, while the other is constant. इसमें एक तरह से एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो भी हमने फैक्ट्री लगा दी उसमें अलग अलग हमारे इनपुट्स होंगे, मतलब लेबर हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया. तो इसमें सेइंग कि ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल while the other are held constant. You would be able to understand this entire concept when I would be explaining this graph. This यहाँ पे सब चीजों का एक तरह से implementation है. So this is just for the information, you can say. Hold on. Hold on please. हाँ, so दूसरा हमारा एक तरह से assumption है कि all units of the, जो भी हमारे यूनिट लेंगे हम वेरिएबल फैक्टर्स में, वो सारे होमोजेनियस होने चाहिए. मतलब सबका एक ऐसा नहीं है कि कोई हम ग्राम में ले रहे, ग्राम नहीं, एक कांस्टेंट यूनिट होनी चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए. होमोजेनियस इन द सेंस कि एक तरह से एक सिमेट्री होनी चाहिए हमारे मेजरमेंट में. जो हमारा क्वांटिटेटिव जो भी हम लेंगे, एक तरह से जो हम फैक्टर्स लेंगे उसमें होमोजेनियस होना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि हम एक को किलो, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, एक को किलोग्राम में एग्जाम ले रहे हैं, दूसरे को हम ग्राम में ले रहे हैं. We need to avoid that. They should be homogeneous factors or homogeneous unit, you can say. All right. And the other one is there is no change of the technology while implementing this thing. All right. And it is possible. The next assumption is that जो हमारा एक तरह से proportion होगा, वो proportion एक तरह से different होना चाहिए input और output के context में. This is something you would be understand when I would be explaining this graph. All right, and it should be measured in the physical units, quintal, ton. All right, so let's jump into this thing so that you can have a fair understanding. So basically here we can see that land and capital यहाँ पे हमने fix लिया है, 10 करके एग्जांपल दिया है ना. बट हियर द वेरिएबल फैक्टर इज वर्कर्स, जो हम एक तरह से वर्कर लेते हैं. यहाँ पे एक 0 वर्कर है, 1 2 3 सब्सिक्वेंटली वर्कर्स आ गया. सो हियर हमने एक तरह से ये हमारा फिक्स्ड वाला हो गया, फिक्स फैक्टर. ये हमारा वेरिएबल फैक्टर हो गया. ये हमारी कोई डिमांड आती है, मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए दिवाली आ रही है अभी, है ना. दिवाली में मिठाइयों की सेल्स बहुत बढ़ रही है, मतलब हर जगह दुकान खोल के बैठ गए हैं सब, है ना. तो यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं जो ये हलवाई वाला है, उसके जो एसेट्स हैं, लैंड, वो एक तरह से फिक्स्ड है. लैंड तो वो अपनी दुकान में ही कर रहा है ना, लेकिन उसने अपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए क्योंकि जो सप्लाई जो डिमांड है वो बढ़ गई है. उसको कोप अप करने के लिए ही हैज इंक्रीज दिस वेरिएबल फैक्टर. उसने वर्कर ज्यादा लगा दिए काम करने के लिए, है ना. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी हम ऐसा एक फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, बट एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद वो चीज घट जाती है. यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे देखो 10 हमारा यूनिट, हमारा फिक्स फैक्टर है, तो हमारा इतना हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, यहाँ पे वीट का एग्जांपल लिया है बेसिकली, यू कैन से. तो हमने एक लेबर पे, एक वर्कर पे हमारा 6 यूनिट आ रहा है, दो लेबर पे हमारा 14 यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट पे हमारा ये आ रहा है.
तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक तरह से प्रोग्रेसिव वे में बढ़ा है, ठीक है, टिल 44, बट आफ्टर 44 इट हैज डिक्लाइंड। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही हमें कहता है, जब भी हम ये एक फंक्शन लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स को लेके, एक पॉइंट के बाद ये डिक्लाइन होता है टोटल प्रोडक्ट हमारा बेसिकली, ठीक है। एंड if I say about marginal, not marginal, सर average product, डिक्लाइन कैसे हो सकता है? लाइक सेम रह जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन डिक्लाइन कैसे हो सकता है? डिक्लाइन ऐसे हो सकता है क्योंकि आपको एक चीज बताई थी मैंने, सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें there are x number of factors। सी यहाँ पे डिक्लाइन ऐसे हो सकता है, हर एक चीज का एक सैचुरेशन होता है। मिठाई बिक रही है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना लोगों कि हाँ भाई इतना, इसके बाद नहीं चाहिए मुझको। सो वी कैन टेक एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। मान लो उसने काम ढंग से नहीं किया, 10 वाले या ये 9 वाले एम्प्लॉय ने, ठीक है, टेकिंग दैट इनटू द रेफरेंस, वी कंसीडर दैट इट डिक्लाइंस। अदर वे अराउंड, यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो, पहले का 6 है, यहाँ पे 7 इसलिए आया, 14 डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिकली एक एवरेज है, ठीक है। एवरेज भी अगर हम देखें यहाँ पे एक पॉइंट के बाद ये भी डिक्लाइन कर रही है, राइट, एंड दिस इज derived from what? This is derived from the total product, you can say. But if I talk about this marginal product, it can also goes negative as well. मार्जिनल प्रोडक्ट में हम एक तरह से देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल यूनिट ऐड होने पे हमारा कितना लग रहा है, कितना हमारा एक तरह से प्रोडक्ट लग रहा है, हमारे फैक्टर्स लग रहे हैं इन शॉर्ट। यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं ताकि हमें एक फेयर आइडिया मिले। तो यहाँ पे हम इसी चीज का ग्राफ देख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो हमें ये चीज बोलता है ये कि एक पॉइंट के बाद ये चीज डिक्लाइन करती है, हमारा हमारा प्रोडक्शन है जो है। सो सबसे पहले if we see this marginal product, it has declined and average product has declined as well after certain point of time, है ना। बट यहाँ पे if we see जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट का हमारा जो ग्राफ है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, इवन आफ्टर द increasing return first stage, you can say. All right, but if we talk about the moment when this thing intersects average product and marginal product, इसके बाद ये जो हमारे average product और marginal product है ये दोनों decline कर रहे हैं। So same you can see in this thing as well, यहाँ पे हमारा decreasing return हो रहा है, right? And if you can also ask this thing why this is negative, someone has said कि हमारा decline क्यों हो रहा है यहाँ पे। डिक्लाइन इन द सेंस, यहाँ पे फिर से हम एक तरह से ये चीज ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारा नया एम्प्लॉय आ गया, उसने आके वर्कर आ गया, उसने आके काम नहीं किया या उसने बस बातों में लगा दिया दूसरे एम्प्लॉयज को, वी टेक द एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, यू कैन से। हाँ, नेगेटिव भी हो सकती है मार्जिनल उसकी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे अगर हम देखें, I was saying about this marginal product, यहाँ पे अगर हम देखें डिक्रीजिंग रिटर्न में, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, ऑलराइट। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेज इज नेगेटिव रिटर्न। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमारा एम्प्लॉय जो होता है वो मे बी उसने आके काम नहीं किया, ही इज जस्ट मेकिंग his time pass over there could be x number of reasons. So what I'm trying to say, यहाँ पे जो इन्होंने ग्रोथ का दिखाया है, यहाँ पे ये चीज डिक्लाइन भी हो सकती है एंड इट कैन
इट कैन गो अराउंड एज वेल, मतलब यहाँ पे आके रुक भी सकती है, ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन ही होगा, इट डिपेंड्स बेसिकली। सो हमारा इंटेंट यहाँ पे बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये कहता है कि जब भी हमारे फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसके बेसिस पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस मार्जिनल this law of variable proportion. And if I talk about the next topic of us जो हम कल पढ़ेंगे, let me quickly jump to this, return to scale। इसमें हमने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, शॉर्ट रन में हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम इम्प्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, बट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, दे कैन चेंज। ऑलराइट, जैसा मैंने आपको एग्जांपल ही बताया अभी दिवाली का मिठाइयों का सिनेरियो, उसमें एक तरह से उसने लेबर बढ़ा दी है। ऑलराइट, तो वहां पे अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल में एक तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि उसने लेबर बढ़ा दिया तो उसका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे व्हीट का एग्जांपल लिया है ना, यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया और एवरेज आप उस हिसाब से फिर डिवाइड कर सकते हैं कि एवरेज भी इसी से डेरिवेटिव है इसका, ये डिवाइडेड बाय ये एवरेज, बेसिकली ये हमारा ये होता है एक तरह से टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। ठीक है, और मार्जिनल में हम एक तरह से एक इंडिविजुअल उसका देखते हैं कि एक यूनिट जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उस पे आगे बढ़ने का कितना हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, वो कितना हमारा रिसोर्स लगते हैं। ठीक है, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यू माइट थिंक, आपको शायद से कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा किसी को। सो यहाँ पे अगर हम पढ़े फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है हमारा इंक्रीज करता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी एडिशनल यूनिट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द टोटल आउटपुट। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि हर एक तीनों जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे बढ़ रहे हैं हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न में, फर्स्ट स्टेज में यू कैन से। And if I talk about this second stage, that is diminishing return, marginal product हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है, and it shows the negative slope you can say। यहाँ पे अगर हम देखें इसका भी और इसका भी, एवरेज प्रोडक्ट का भी, but here we can see this total product is still increasing, so this is the differentiation you can say। So यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ पे हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा है एक तरह से, यहाँ पे अगर हम देखें आउटपुट प्रोडक्ट ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट इज इनकरिंग लॉसेस टू अस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यू कैन से। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग which is explained by this graph। let me quickly open to the negative return। नेगेटिव रिटर्न में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और लास्ट वाला जो था मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट, दे ऑल एक तरह से फॉल कर जाते हैं। राइट, so I hope you are able to understand this concept। this is quite easy once you understand this। it might sound something difficult at first insight। so यहाँ पे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी एज जो होती है हमारी वो फर्स्ट स्टेज पे होती है, क्योंकि वहां पे हमारा सारा एक तरह से पड़ता है। राइट, द ग्रेटेस्ट आउटपुट इज एट द एंड ऑफ द स्टेज 2। आउटपुट इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम टोटल प्रोडक्ट का यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता ही चला जाएगा ना, टोटल प्रोडक्ट
जो है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो तब तक नहीं होगी जब तक हमारी जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होती। यूटिलिटी मैंने आपको बताया था पहले, इफ यू रिमेम्बर, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाती है। ऑलराइट, so we can say second stage is an ideal because there's a balance of productivity and total output. So we can conclude this thing from this. Alright, although it is incurring some amount of wastage because अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें मार्जिनल और एवरेज के, वहां पे वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। Alright, so this is something I have already said. Let me quickly open the attendance sheet. I will suggest you to read this topic from the internet, you can say, if you don't have the book. This is quite if you're having some doubts, it might sound a bit difficult to you. Okay, today it's 2nd of November. Please mark your attendance, whosoever is able to see 22. their names. Sir, 12. 22, 12, Sir, 13, 24, 13, 24. 24. Okay. Anyone else who is here and able to see the screen, see the name of them? 29, Sir, 28. Sir, 28. 29. Okay. Sir, roll number 40. So 40. Sir, 35. 35. Okay. Sir, Anyone else who is 49. able to? 49, 49. 49. Okay. Sir, 56. So Sir, 42. roll number 40. 56. Someone said 40. 42. 42. Sir, roll number 60. 60. 70. 70. Anyone else? Please स्क्रीन पे देखो, बताओ रोल नंबर। 75. 75. Okay. तो 76 ने भी Sir, मैसेज किया 76. 76. सर 92 और एक मिनट। सॉरी 97 7 97. Sir, 112, sir. 100. 100, sir. एक मिनट, 100. 106. Sir, 116. Sir, 128. और कोई नहीं है? Please see your attendance. So 122. 122.
आई होप सबका अटेंडेंस लग गया है अभी। Sir, 26. R.N. Yadav. 26. Someone is on text. I am not able to unmute my mic. Okay. Yarika. रोल नंबर है आपका। Anyone else who is left with attendance? (76). Priyanshu. 76. Okay, let's meet in the next class, right? I hope everyone has marked their attendance. Okay, goodbye. हेलो सर 51 लगा देना। 51, एक मिनट। हाँ जी क्या नाम है आपका? मनीष। 51. बोलने तो हो जाता है। Okay, we will meet in the next class. Bye.